सुधा मोदी जी, सुधा मोदी जी, sir, I stand here today. please, please. Sir, today I stand here. Sudha Murthy ji, you please address. Please. No, pause. On that day, I allowed our leader of the opposition. That on that day, how many minutes I allowed on the 0 hour? More than 7.5 minutes I allowed. Okay, now Sudha Murthy ji, please. Sir, today I stand here to talk about the light and the lotus, the relics of the awakened one, about Bhagavan Buddha. It is in the Kila Rai Pitora exhibition is held there. It is not an ordinary exhibition. Please understand the significance of that. When Buddha died 2,500 years ago, his bones and Chitabhasma was distributed into 8 different parts, and one part was given to Shakya Kula, it is his clan, and that was a stupa was built in Pipwara, and that is one of the most sacred one. 127 years back, that is 1898, it was excavated, and part of that was taken by Mr. William Pepe to Britain, and he kept the jewels along with many other things. Now in 1971 they re-excavated and they got his bones and some more jewels. It is not the jewels or bones. If you go and see that exhibition, you can see the artifacts which were 2,500 years old, extremely difficult to make even today, with the Brahmi script at that time indicating we the Shakya people would like to place a small ornament along with the Buddha's bones, and it's a part of our contribution to Buddha's glory. It is one of the finest exhibitions which one ever can see. It is not just a bone. Buddha was a near perfection man, and he was internationally known today, but he belongs to everyone, and we should be very proud that he was born in our border. It was not easy for bringing those jewels which was taken by Mr. William Pepe to Britain, bringing back those jewels along with those containers. So it was next to impossible. It was not possible at all in one's lifetime. But I would like to congratulate following people. Number one, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, in his stewardship within 4 months of time, and he made it that it should come to India. The next person in this line is Mr. Gajendra Shekhawat ji, who worked very hard because they were out of our border and they were in Hong Kong. Bringing them, it was not easy. Number 3 is Mr. Vivek Agarwal, Secretary, and his team. Number 4, the many donors, many people who took risk, because bringing these things will be very difficult one. So at last we have Buddha's bones, a near perfection man, and I will end this with Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, the Sangham Sharanam. माननीय सभापति महोदय, इस शून्यकाल सूचना के माध्यम से मैं सदन और सरकार का ध्यान सदियों से समाज की सेवा में लगे और आज भी सकल समाज के लिए अत्यंत उपयोगी नाई जाति की ओर, बार्बर कास्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि बदलते परिवेश में इस जाति के लोग अन्य पेशों में भी गए हैं, तथापि इस जाति के अधिकतर लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी अपनी परंपरागत पेशा में ही संलग्न हैं। इनकी परंपरागत पेशा को अब केश कला और इन्हें केश कलाकार कहा भी जाने लगा है। स्पष्ट है कि केश कलाकार अपनी कला तथा सेवा के माध्यम से मानव समाज को स्वच्छ, सुंदर और सभ्य रूप प्रदान करते हैं। ऐसी महान सेवा से जुड़ा यह समुदाय आज भी बड़े पैमाने पर
आज संगठित क्षेत्र में कार्यरत है और कौशल उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक उपकरण, सस्ता ऋण तथा बाजार से जुड़ाव जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इनका सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और ऐसा हम इनके लिए समर्पित यानी डेडिकेटेड बोर्ड, निगम या आयोग जैसे सांविधिक निकाय का गठन करके कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में केश कला बोर्ड, केश कलाकार कल्याण बोर्ड अथवा समकक्ष व्यवस्थाएं पहले से कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता और सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन सकल अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि संस्थागत ढांचा मिलने पर यह समुदाय तेजी से आत्मनिर्भर बन सकता है। विदित हो कि झारखंड राज्य में भी ऐसी व्यवस्था की गई थी, परंतु कतिपय कारणों से यह अब बंद हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अनुरूप यदि केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय केश कला बोर्ड का गठन किया जाए तो देश भर में एक समान नीति, मानकीकृत कौशल प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रमाणन, ई कॉमर्स एवं सरकारी खरीद से जुड़ाव तथा बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश के केश कला कर्मियों के लिए राष्ट्रीय केश कला बोर्ड का गठन किया जाए ताकि यह पारंपरिक सेवा समुदाय सम्मानजनक आजीविका के साथ राष्ट्र निर्माण में और सशक्त भूमिका निभा सके। वंदे मातरम। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की तहसील मछली शहर स्थित ग्राम सभा जमुनीपुर सिमरी की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ग्राम जमुनीपुर से होकर एक चकमार्ग नई बनी सर्विस रोड ओवरब्रिज के पास से जुड़ता है, किंतु यह मार्ग आज भी कच्चा एवं अधूरा है। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि इस मार्ग का निर्माण करा दिया जाए तो क्षेत्र के अन्य ग्रामवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। महोदय, नड़ाज जमुनीपुर के बीचों बीच रेलवे लाइन पर जाती है। किसान भारी संख्या में रेलवे ट्रैक को पार करके जाते हैं, जान माल का खतरा बना रहता है। जनहित में नड़ाज जमुनीपुर के बीच में एक अंडरपास बनवाने की कृपा सरकार का ध्यान में आकृष्ट करना चाहती हूं ताकि जनमानस को इससे आने जाने में असुविधा को हम दूर कर सके। धन्यवाद। श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं एक जनहित के अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह विषय भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 को आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के परिणामों तथा भारत के लिए एआई शासन व्यवस्था और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के संदर्भ में एक स्पष्ट, समयबद्ध और क्रियान्वयन योग्य रोड मैप की आवश्यकता से संबंधित है।